Hey, you passionate people out there, it's me, Dhriti Kathuria. In this video, we will be talking about the constitutional powers and functions of the State Bar Council. So, let's get started. Bar Council. Advocate Act 1961 lays the provision for establishment of the Bar Council. जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का उसने कुछ प्रोविजंस दिए हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बार काउंसिल. ये बार काउंसिल दो पैटर्न्स में डिवाइडेड है. वन इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर इज स्टेट बार काउंसिल. स्टेट बार काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 and section 4 established Bar Council of India. Now let's talk about the State Bar Council. State Bar Council basically bar council है for particular states जैसे कि states of आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा. ऐसे ही जो छोटे बड़े स्टेट्स हैं उनके पास अपना खुद का बार काउंसिल होता है. बट जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो ना बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए वो किसी ना किसी स्टेट बार काउंसिल के अंडर ही आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप कम्स अंडर द बार काउंसिल ऑफ केरला. स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, बोथ ऑफ देम कम्स अंडर द बार काउंसिल ऑफ मद्रास. States of Maharashtra, Goa, and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, all of these comes under the Bar Council of Maharashtra and Goa. States of Punjab and Haryana and the Union Territory of Chandigarh comes under the Bar Council of Punjab and Haryana. States of West Bengal and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands comes under the Bar Council of West Bengal. There are some states and some union territories which have their independent bar councils, such as Himachal Pradesh and Delhi, respectively. Now let's talk about the members of the State Bar Council. Basically, हर स्टेट बार काउंसिल में डिफरेंट पोजीशन के लोगों को अपॉइंट किया जाता है. सच एज स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो को अपॉइंट करते हैं. स्टेट बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा में एडवोकेट जनरल होता है उन्हीं पर्टिकुलर स्टेट्स का. स्टेट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में एडवोकेट जनरल एक्स ऑफिशियो होता है पंजाब एंड हरियाणा का ही. इन पर्टिकुलर मेंशन स्टेट के अलावा भी जो स्टेट बार काउंसिल्स होते हैं उनमें एडवोकेट जनरल एक्स ऑफिशियो ही अपॉइंट किया जाता है उन्हीं पर्टिकुलर स्टेट्स का. अभी हमने देखा कि जो एक्स ऑफिशियोज हैं दे होल्ड अ रियली मेजर एंड इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द स्टेट बार काउंसिल. बट डाउट ये है कि व्हाट इज एन एक्स ऑफिशियो एंड एक्चुअली हु इज एन एक्स ऑफिशियो. एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जो एक बंदे को अपने आप मिल जाती है बिकॉज ऑफ जिस पोजीशन पे वो पहले था. अब ये एक्स ऑफिशियो होता कौन है? एक्स ऑफिशियो इज अ मेंबर ऑफ अ बॉडी who is a part of it by virtue of holding another office. Now let's talk about the term of office of the members of the State Bar Council. Section 8 of the Advocate Act 1961 provide the term of office. जो एक elected member होता है उसका term of office होता है 5 years from the date of publication of the result. अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि due to some reasons बार काउंसिल इलेक्शन ना कर पाए, दैट टू बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट टर्म. तो उस सिचुएशन में दे कैन एक्सटेंड द करंट टर्म ऑफ ऑफिस बाय नॉट अप टू बट 6 months. Let's come to the functions now. First are general functions, which are explained under the section 6 subsection 1 of the Advocate Act 1961. They are to admit a person as advocate on its role, to maintain such roles, to entertain cases of misconduct against the advocate, to safeguard the rights, privileges and interest of advocate, to promote and support law reforms, to promote the growth of bar association, to conduct seminars and talks by eminent jurists, to publish journals, to organize legal aid for poor, to manage funds of bar council and to provide for the election.
Second main function of a State Bar Council is to issue certificates of enrollment. जो सेक्शन 22 है एडवोकेट एक्ट 1961 का, उसके तहत हर स्टेट बार काउंसिल को सर्टिफिकेट इशू करना होता है उन सब को जिनका नाम रोल ऑफ एडवोकेट में होता है. अब कोई कैसे एडमिट होता है एज एन एडवोकेट ऑन अ स्टेट रोल? इसके लिए एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 24 कुछ कंडीशंस देता है, जैसे कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he has completed the age of 21, he has obtained the degree of law. Third main function है to maintain a role of advocate. जो एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 17 है, उसके तहत हर स्टेट बार काउंसिल को एक रोल बनाना और मेंटेन करना होता है. Coming to the powers now. A state bar council has 4 main powers. Those are, firstly, to make rules. जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसके सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 ने स्टेट बार को ये पावर दी है कि वो रूल बना सके, जैसे कि सेक्शन 16 टू सेक्शन 28 सही से काम कर सके. बट जो स्टेट बार है उसका कोई भी बनाया हुआ रूल इफेक्टिव तभी होगा जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होगा. सेकेंड पावर इज टू अपॉइंट कमेटी एंड स्टाफ मेंबर्स. बार काउंसिल बहुत सारे डिफरेंट कमेटीज इस्टेब्लिश करता है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, जैसे कि डिसिप्लिनरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी. थर्डली, टू पनिश एन एडवोकेट. स्टेट बार काउंसिल के पास ये पावर है कि वो एक एडवोकेट को पनिश कर सके फॉर हिज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या फिर कोई भी अदर मिसकंडक्ट. जो डिसिप्लिनरी कमेटी है स्टेट बार काउंसिल की, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी कंप्लेंट को डिसमिस कर सके, किसी भी एडवोकेट को रिप्रामेंट या डिसअप्रूव कर सके, सस्पेंड कर सके, या फिर एक एडवोकेट को स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट से रिमूव कर सके. लास्टली, टू मेंटेन अकाउंट्स एंड कंडक्ट ऑडिट. स्टेट बार को सेक्शन 12 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं. जो स्टेट बार काउंसिल के अकाउंट्स हैं, दे हैव टू गेट ऑडिटेड, बट दोज ऑडिटर्स मस्ट बी क्वालिफाइड ऑडिटर्स ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956. The State Bar Council have to send its accounts and auditor report to the central government, and the same has to be published in the Gazette of India. There can be many questions based on this topic, but a few of them are: discuss the functions and powers of State Bar Council. What is the term of office of members of the State Bar Council? Explain briefly the establishment of State Bar Council. Explain the constitutional powers of the State Bar Council. Explain the functions of the State Bar Council. Explain Section 3 of the Advocate Act 1961. Explain briefly the various states having State Bar Council. Hold on. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.